Hello, my dear doctors, engineers, and scientists. Based on our previous discussion, let us solve the problems given in exercise. Read first problem. First problem is give IUPAC name of given condensed formula without bonding formula given, and see this M is meta, this O is ortho, P means para. So to solve this problem, first you have to write the bond structures of all these given problems. First read question what is asked. You are asked to give IUPAC name, then classify them or identify them, either it is alkyl halide or allyl halide or benzyl halide. अगर आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये अल्काइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड है, तो इसमें आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है. अगर आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये विनाइल हैलाइड है या तो एराइल हैलाइड है, तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी. ये तीन टाइप में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आता है. विनाइल और एराइल में नहीं आएगा. सो फर्स्ट ड्रॉ द bond line structure. Don't show the bond of carbon and hydrogen. Only carbon bond you have to show. Let us solve one by one. First one is, you can write structure like this. CHCl and then CH3. Select the longest chain. It is of 4 carbon. Give minimum number to chlorine. So it will be 1, 2, 3, 4. So it will be 2 chloro, 3 methyl butane. And it is a secondary alkyl halide. See the second one. Second one will be like this. CH3, CH2. Decide the longest chain. Longest chain is of 6 carbon. Minimum number you have to give chlorine and then write in alphabetical order. So it will be, number is like this: 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 3 chloro, 4 methyl hexane, secondary alkyl halide. See the third one is कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं दिखाने हैं आपको, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड का ऐसे एक्सपांड कर दीजिए तो इजी रहेगा आपके लिए IUPAC नेम लिखना. नंबर 3 CH2I. ठीक है, को मिनिमम नंबर देना है आयोडीन को. लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 4 कार्बन. सो 1, 2, 3 एंड 4. सो 1 आयोडो, 2, 2 डाई मिथाइल, 4 कार्बन चेन ब्यूटेन. ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और हेलो अल्केन आप बोल सकते हो. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. सी नंबर 4. नंबर 4 इज हियर. इट इज लाइक दिस: CH3, 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 CH2, CHBr and here is a phenyl ring. आप ऐसे लिख लेना. ठीक है. Now bromine is attached to the alkyl chain, so this is main and this one is substituent, and when benzene is attached as a substituent it is called phenyl ring. Now give number 1 here. 1, 2, 3 and 4. So butane. This is here written butane. Now on first number carbon phenyl is also there and bromine is also there. And on third number carbon 2 methyl groups are there. Now substituent number 1, 2 and 3. Now arrange them in alphabetical order. So 1 bromo, 3, 3 dimethyl, 1 phenyl. It is a secondary alkyl halide. Secondary alkyl halide. Let us move to the number 5.
नंबर 5, अगर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं देख पाते हो तो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द क्वेश्चन इन टेक्स्ट बुक. नंबर 5, मैं भी टेक्स्ट बुक में सही लिख रहा हूँ. CH3, number 5, observe this. Number 5, it will be like this: CH3, CH3, CHBr, CH3. So it is very easy. Practice it yourself, and it is a secondary alkyl halide. Answer is here. Do it yourself. Number 6. This one answer is here. Number 6 is given in question in a condensed form, but its bond structure is like this: CH2 CH3. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड में आप लिख लीजिए CH2Br, ऐसे रहेगा. तो लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग ब्रोमीन इज दिस 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ब्यूटेन. नाउ 1 2 3 4, अपर साइड भी जा सकते थे, नेम रिमेन सेम. तो अब क्या है, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 इथाइल, ये 2 मिथाइल 2 इथाइल. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए. तो ये है 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. नंबर 7 को देखिए आप. आंसर यहाँ पे 3 क्लोरो. तो स्ट्रक्चर ऐसा है. नंबर 7 H3C, decide the longest chain including chlorine. So it will be the longest chain of 5 carbon. Give minimum number. So 1 2 3, minimum number to chlorine 3 4 and 5. ठीक है, ये देखिए 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है. क्लोरो फर्स्ट, मिथाइल नेक्स्ट. एंड दिस इज अ, सॉरी ये नहीं, ये 3 क्लोरो 3 मिथाइल 5 कार्बन चेन पेंटेन. ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है. विच वन इज दिस? टर्शरी अल्काइल हैलाइड. चलिए अब हम आते हैं नंबर 8 के ऊपर, ये वाला. आंसर इज दिस. इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहिए. मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ नंबर 8 का. H3C, CH डबल बॉन्ड CHCl यहाँ पे है. CH2 CH and CH3. ठीक है, you have to decide the longest chain including carbon double bond carbon and minimum or number also given to carbon double bond carbon. अब इतनी सिस्टम को ऑब्जर्व कीजिए. तो ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड इसके साथ है क्लोरीन. तो ये विनाइल हैलाइड होगा. नाउ यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई इट इज आइदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. okay, now give number like this: 1 2 3 4 5 and 6. Now observe the number 6. 3 क्लोरो 3 क्लोरो, ये रहा 3 क्लोरो 5 मिथाइल 1 2 5 मिथाइल 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन. ये सेकंड नंबर कार्बन डबल बॉन्ड हेक्स 2 इन. ठीक है, ये विनाइल हैलाइड है. चलिए नंबर 9 के ऊपर जाते हैं. नंबर 9 ये वाला. इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दिस: H3C, CH डबल बॉन्ड CH, Br and CH3. डिसाइड द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. क्योंकि हेलोजन से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को प्रायोरिटी पहले दी जाती है. तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये लॉन्ग चेन मेरे ख्याल से हो जाएगी. यहाँ से नंबर दीजिए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को मिनिमम मिलेगा 1 2 3 4 5. अब अपने आप चेक करिए. 4 ब्रोमो, ये रहा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. 5 कार्बन चेन पेंट ऑन सेकंड नंबर कार्बन डबल बॉन्ड 2 इन. और ये आप देखिए तो ऐसी सिस्टम है: कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड,
सॉरी सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ इसके साथ हेलोजन। तो ये जो है एलाइलिक सिस्टम है, और एलाइलिक में आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी दिखाना है। ये कार्बन कंटेनिंग हेलोजन इज अटैच विथ अ 3 कार्बन, सो ये टर्शरी अलाइल हैलाइड है। ठीक है, नंबर 10 ये वाला देख लीजिए। नंबर 10 का स्ट्रक्चर ऐसे है। ऑन पैरा पोजिशन क्लोरीन CH2CH। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप फ्रेश हो, जब भी आपको लगे कि नहीं केमिस्ट्री में आज कुछ करना है, तभी ये लेके बैठिएगा। ठीक है, बहुत दिल से करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सब रूल्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें तो क्लोरीन इज अटैच विथ अ बेंजीन, सो बेंजीन इज मेन। नाउ बेंजीन कंटेन अ ब्रांच एंड ब्रांच कंटेन सब ब्रांच। तो यहाँ पे हम नंबर 1 2 3 4 ऐसे देंगे। तो 1 क्लोरो, ये रहा 1 क्लोरो। ऑन 4th नंबर कार्बन ऑफ बेंजीन देयर इज अ ब्रांच एज वेल एज सब ब्रांच, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। तो फिर से उसको भी नंबर दीजिए, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कीजिए। ये मिथाइल ग्रुप सब्सटीट्यूएंट, सो 2 मिथाइल, और प्रोपेन नहीं लिखना है क्योंकि ये भी सब्सटीट्यूएंट ही है। सब ब्रांच एंड ब्रांच बोथ आर सब्सटीट्यूएंट, सो ऐसे लिखना है 2 मिथाइल प्रोपाइल, एंड नाउ मेन इज दिस बेंजीन, और दिस वन इज द एराइल हैलाइड। बेंजीन जब आता है तो समझ लेना एराइल हैलाइड। ठीक है, सीधा बेंजीन के ऊपर अगर हेलोजन है, सीधा बेंजीन के ऊपर हेलोजन है तो ये एराइल हैलाइड होगा। ओके, अब हम आएंगे ये 11 का स्ट्रक्चर देख लीजिए। See the structure of 11 on meta position. This complete branch contains sub branch. अब बहुत ही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। ये एराइल हैलाइड नहीं है क्योंकि डायरेक्टली ऑन बेंजीन रिंग हैलोजन इज नॉट अटैच्ड। हाँ, बेंजाइल हैलाइड है, आंसर तो है ही, आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे 1 देंगे, 1 क्लोरोमिथ, ये गलत है। यहाँ जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो नाम गलत है, मैं बोल रहा हूँ। इसको बोलेंगे 1 क्लोरोमिथाइल। तो यहाँ पे 1 क्लोरो लिखा है ना, साइड में ऐड कर देना 1 क्लोरोमिथाइल। उसके बाद ऑन ये 1 2 एंड 3 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, एंड इट ऑल्सो कंटेन ब्रांच एंड ब्रांच कंटेन सब ब्रांच। अब इसका नंबर जो है वो हम ऐसे देंगे 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन। ऑन सेकंड नंबर कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप, तो ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, 1 क्लोरोमिथाइल 2 2 डाई मिथाइल, और ये प्रोपाइल, इसके बाद बेंजीन। ये प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड है। जब बेंजीन के ऊपर CH2Cl आता है तो उसको बेंजाइल क्लोराइड, तो ये बेंजाइल हैलाइड है। समझ गए? अब कितने बाकी? लास्ट वन, 12th वन। तो 12th का ऑर्थो पोजीशन पे कुछ हमें बताया है कि, तो मेरे ख्याल से 12th का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। चलिए ड्रॉ करते हैं, मेरे साथ आप भी ड्रॉ करिए और मेरे साथ डिस्कशन में भी पूरा पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे ब्रोमीन, ये CH, ठीक है, CH3 CH2 CH3। सो दिस इज सीधा बेंजीन के साथ हेलोजन है तो ये एराइल हैलाइड है, कोई दो राय नहीं इसमें। और आगे वाला जो 11 था वो प्राइमरी था, जरा देख लीजिएगा फिर से। तो ये 1 ब्रोमो 2 2 on the second carbon of benzene ring is contain a branch and branch contains sub branch। यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3, longest is a 3, so propyl। यहाँ पे लिखा है 1 methyl on first number carbon, 1 methyl, this one is the propyl, and then after this benzene।
ठीक है, ये बेंजीन, ये एराइल हैलाइड है। तो ये बहुत ही आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझा दिया है। ठीक है, तो आप अपने आप फिर से जब भी टाइम मिले तो आंसर के साथ नहीं, विदाउट आंसर फिर से मैच करिएगा। आप अपने आप ये सब लिखिएगा। मैंने सब स्ट्रक्चर ड्रॉ किए यहाँ पे, तो आपको भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड इज only asked IUPSC name of following compounds, so it will be very easy for us. Only six compounds are given, and see here, the first one is the bond drawn here, so we don't have to draw the bond structure. Okay, already drawn given. See the first one, और ये आपको देना है, प्रैक्टिस करिए। मैंने आंसर दे दिया है, आंसर सही है। आंसर है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये सही है। आप अपने आप सोचिए। सेकंड वाला देखिए, इसका स्ट्रक्चर है एंड नेम इज 1 ब्रोमो 4 सॉरी 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2,2 ट्राई फ्लोरो मीथेन। ठीक है, थर्ड वन अगर नहीं दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देख लीजिए। सी द थर्ड वन, थर्ड वन ऑलरेडी स्ट्रक्चर इज ड्रॉन हियर। थर्ड वन 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इन नहीं होगा, आइन होगा। फोर्थ वन बॉन्ड स्ट्रक्चर इज ड्रॉन CCl3 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 एंड हियर क्लोरीन। तो ये कैसे होगा? सी, यहाँ पे कार्बन, इसके पास भी 3 क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन, इसके पास भी 3 क्लोरीन, यहाँ पे सीधा क्लोरीन, और यहाँ पे कार्बन और इसके पास भी 3 क्लोरीन। तो लॉन्गेस्ट चेन ये होगी 1 2 एंड 3। लॉन्गेस्ट चेन इज दिस। तो ऑन सेकंड नंबर कार्बन पहले ये, तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन सेकंड नंबर कार्बन ये वाला ट्राइक्लोरोमिथाइल, तो ये वाला हो गया कंप्लीट, ट्राइक्लोरोमिथाइल। उसके बाद आता है एक, यहाँ से आप नंबर दे सकते हो 1 2 और 3, ये सही नंबर है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 1 1 और ये क्लोरीन 2 एंड 3 3 3, टोटल कितने हुए? ये तीन और ये एक, 7 क्लोरीन। सो उसको बोलेंगे हेप्टाक्लोरो एंड द लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3 कार्बन। ठीक है, तो प्रोपेन, हेप्टाक्लोरो प्रोपेन। लास्ट वन नहीं है और बाकी है 2, इसको देख लीजिए, इसका क्या होगा ना, 2 ब्रोमो। तो ये पूरा, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर अल्केन चेन के साथ ब्रोमीन है और फिनाइल रिंग है तो आपको प्रायोरिटी ब्रोमीन को, ब्रोमीन किसके पास है तो ये मेन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ब्यूटेन, 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। अब आपको डिसाइड करना है मिनिमम नंबर आपको देना है ब्रोमीन को, 1 2 3 4 ऐसे नंबर देना है। तो यहाँ सेकंड 2 ब्रोमो और 3 3 3 3। जब बेंजीन रिंग हो तो आपको डाई यूज नहीं करना है, आपको 20 यूज करना है। 20 मीन्स 2, ट्रिस मीन्स 3, टेट्रा किस मीन्स 4 ना। वो आगे एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें ये रूल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 20। अब इसका आप देखो तो 1 2 3 4, तो ये क्या है 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्लोरीन, सो 3 20, 2 टाइम 4 क्लोरोफिनाइल, ये भी 4 क्लोरोफिनाइल, ये भी 4 क्लोरोफिनाइल, एंड दिस लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ ब्यूटेन। ओके, आई थिंक दिस इज लास्ट वन एंड 6 वन। देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है तो टाइम इतना नहीं लग रहा है। CH3 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 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन और आयोडीन। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को प्रायोरिटी देनी होगी आपको।
तो ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 4 कार्बन कंटेनिंग क्लोरीन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 एंड 4, ये 4। ठीक है, तो 1 क्लोरो ऑन 1 कार्बन, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आयोडोफिनाइल आ जाता है। 4 आयोडो, यहाँ से नंबर दीजिए 1 2 3, ऑन 4 नंबर कार्बन ऑफ बेंजीन आयोडो इज देयर, सो 4 आयोडोफिनाइल, इसको ब्रैकेट में रखिए। देन आफ्टर 3 डाई मिथाइल, डाई को कंसिडर नहीं करना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये बाद में आएगा। ब्यूट 1, ये फर्स्ट नंबर कार्बन के ऊपर ही डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 इन। ठीक है, नंबर एक बार देख लीजिए, 1 क्लोरो ऑन 1 नंबर कार्बन, 4 आयोडोफिनाइल, 3 डाई मिथाइल, ब्यूट 1 इन। कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे समझिए और अपने आप पहले करिए और फिर ये चेक करिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द थर्ड नंबर क्वेश्चन? राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ गिवन ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। You are given here 8 IUPAC nomenclature, and based on this IUPAC nomenclature, तो पहले मैं आपको ज़रा हिंट्स दे दूँ। आपको ये फॉर्मूला सेकेंडरी प्रेफिक्स प्लस प्राइमरी प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, उसमें से फाइंड कर लेने हैं। यहाँ पे P लिखा है तो ये पैरा होगा, ठीक है, और कहीं पे नहीं तो ये आपका यूपीएससी नहीं होगा। पैरा पोजीशन मतलब के 4th पोजीशन ऑन बेंजीन रिंग। ओके, तो हर एक नाम में आपको वर्ड रूट पेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटेन, बेंजीन, ऑक्टेन, हेप्टेन, ब्यूटुइन, तो आपको पता चलेगा कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन कितने की। पहले के मैं पहला स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ कि पेंटेन, तो आपको पता चल गया कि 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 सॉरी 6 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। बाद में क्या लिखा है, सेकंड नंबर क्लोरीन, तो आप यहाँ से अगर नंबर 2, यहाँ आप फ्री है कहीं से भी दे सकते हो, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर आपको वहीं पे सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप रखने। 2 क्लोरो, यहाँ पे आएगा क्लोरीन, 3 मिथाइल, यहाँ पे आएगा CH3। नाउ रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन यू हैव टू सेटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन। अब सेकंड देखिए, पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, तो ये क्या है, बेंजीन। ये पेरा ब्रोमो, पेरा पोजीशन पे ब्रोमीन एंड पेरा पोजीशन पे क्लोरीन, हो गया सीधा। तो ऐसे करके, ठीक है, ये 8 आपको दिए गए हैं, वो 8 नेम्स यू हैव टू राइट योर सेल्फ। कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो हम एक और डिस्कस करेंगे। ये भी है पैरा नंबर 3 को देखिए, ये 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये 1 क्लोरो, देखिए 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये गलत है। यहाँ पे ये राउंड नहीं आएगा, आपको ऐसे ड्रॉ करना है, करेक्शन कर लीजिएगा। ये 1 क्लोरो एंड 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन आपको बताया है, तो ये बेंजीन ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये गलत है, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए 4 के ऊपर चलते हैं। उसमें क्या है कि 2 इन ब्रैकेट 2 क्लोरोफिनाइल, तो ये देखिए 1 2 एंड ब्रैकेट में ये वाला 1 2, तो ऑन सेकंड नंबर कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है आपको पीछे से, इसमें पहले आपको वर्ड रूट फाइंड करना है। वर्ड रूट क्या है, ऑक्टेन, तो ये पता चल जाना चाहिए कि 8 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन, और आपको बोला है कि 1 आयोडो ऑक्टेन, तो पहले नंबर के कार्बन पे ही 1 है, आयोडीन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आपको बोला है कि 2 क्लोरोफिनाइल ऑन सेकंड नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, तो यहाँ है फिनाइल रिंग, और उसके भी सेकंड नंबर कार्बन पे क्लोरीन,
हो गया। एंड रिमेनिंग वैलेंसी यू हैव टू सेटिस्फाइड विथ। और एक स्ट्रक्चर जो 5th नंबर का हमारी बुक में लिखा है पर फ्लोरोबेंजीन। ये पर फ्लोरोबेंजीन इज common as well as IUPSC name and it is asked sometime in competitive exam। तो उसमें आपको कोई रूल की हिंट नहीं मिलेगी, तो जरा देख लीजिए ये सही स्ट्रक्चर यहाँ पे है। पर फ्लोरोबेंजीन क्या करना है, पर फ्लोरोबेंजीन है, बेंजीन ड्रॉ करके draw the benzene ring and all 6 carbon of benzene is substituted by fluorine। हाइड्रोजन ऑफ ऑल 6 कार्बन सब्सटीट्यूटेड बाय फ्लोरीन, तो इसका होगा पर फ्लोरोबेंजीन। देन आफ्टर सी द 6th वन, 7 वन एंड 8 वन। मुझे पता है कि आप कर लेंगे। 6 वन में वर्ड रूट है हेप्ट, तो आपको पता है कि 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट। उसके 4 नंबर कार्बन पे टर्शरी ब्यूटाइल, तो यहाँ से नंबर दो 1 2 3 एंड 4, तो 4 नंबर कार्बन पे ये टर्शरी ब्यूटाइल। बहुत इजी होता है जब नाम आपके पास होता है, ठीक है। 6 नंबर में टर्शरी ब्यूटाइल। ऑन 3rd नंबर आयोडीन, ऑन 3rd नंबर आयोडीन, ये 3rd नंबर, तो यहाँ पे आयोडीन। एंड देन आफ्टर हेप्टेन एंड रिमेनिंग ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन। वैसे आप देख लीजिएगा नंबर 7 नंबर 8 बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऑलरेडी IUPSC नेम इज गिवन इन अवर बुक and already answer is visible on your screen, so match it with, or if you have any question then ask me। okay, so this is the 8 structures you are asked in question number 3। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, दिस क्वेश्चन यू कैन सोल्व बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। उसमें हमने एक टॉपिक लिया था, वो था डाइपोल मोमेंट। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से किसकी डाइपोल मोमेंट, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में बता चुका हूँ कि टोटल डाइपोल मोमेंट विल बी 0। ओके, सो हियर इज डाइपोल मोमेंट 1.59, क्योंकि इसका ये सब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आपको सिर्फ यही बताना है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसकी होगी। यहाँ पे ये क्लोरीन की ऑपोजिट डाइपोल जा रही है। फिजिक्स में एक फॉर्मूला आता है, इस एंगल से आप डाइपोल मोमेंट गिन सकते हो। केमिस्ट्री में हमको नहीं गिनना है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है। तो इसकी डाइपोल मोमेंट आती है 1.59। वी आर नॉट यूजिंग इन बोर्ड दिस फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट, तो ये ऑपोजिट है इसलिए थोड़ी कम हो जाती है। ये हाइड्रोजन जो है वो डाइपोल मोमेंट निग्लिजिबल होती है, फिर भी वो कार्बन को सपोर्ट कर रही। तो in CH2Cl2 the carbon chlorine bond moment enhanced the resultant of 2CH bond moment। इसकी तो कैंसल हो रही है, एक ऊपर जा रही है एक इधर जा रही है, तो इसकी तो हम बोल रहे हैं कि 0 समझ लो। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन जो निग्लिजिबल है 1.59 डी बाई आ रही है। उसके बाद देखिए तो कार्बन क्लोरोफॉर्म सेकंड नंबर हमको दिया है, क्या है, CHCl3। तो कार्बन क्लोरीन 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 तो ऑपोजिट जा रही, क्लोरीन ये इस तरफ, क्लोरीन ये इस तरफ, ये इस क्लोरीन ये इस तरफ, ये हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये इस तरफ, तो इसकी आती है 1.01 डी। अगर आपको ऑर्डर पूछे तो CHCl3 सॉरी CCl4 is less than CHCl3 less than यहाँ पे 1.59 दो कार्बन की, और देख लेते हैं तीसरा कौन सा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो तो कम ही आएगी, 3 ही है ना, तो हाईएस्ट क्लोरोफॉर्म की होगी ये CHCl3। क्लोरोफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, 1.01 डी। ये वैल्यू गलत है, ठीक है, ये वैल्यू गलत है क्योंकि क्लोरोफॉर्म का मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे होगा। ये आप मत ड्रॉ करिएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ।
ये क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, ये हाइड्रोजन कर दीजिए। तो देखिए इसका इधर जाएगा डाइपोल मोमेंट, इधर ये इन दिस डायरेक्शन एंड दिस वन इज दिस इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑल आर सपोर्टिंग, ये क्लोरीन जो है वो, लेकिन ये वन डायरेक्शन। अगर आप फिजिक्स फॉर्मूला से गिनेंगे तो CHCl3, तो हाईएस्ट विल बी ऑफ क्लोरीन, ये वैल्यू दिस वन मे बी ऑफ दिस एंड मे बी ऑफ दिस, लेकिन आपको यही पूछा है कि हाईएस्ट किसकी है, तो ये CHCl3 की हाईएस्ट होगी, ग्रेटर देन CHCl2, ग्रेटर देन CCl4। CCl4 में तो सब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये देख लीजिए आप, ऑल आर ऑपोजिट, ये ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन CH2Cl2 इज हाईएस्ट दिया है। तो आपका ऑर्डर ये नहीं आएगा, आपका ऑर्डर आएगा CHCl3 ग्रेटर देन CH2Cl2 ग्रेटर देन CCl4, ये 0 होती है। यहाँ पे वैल्यू गलत है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मे बी दिस वैल्यू इज ऑफ दिस कंपाउंड, ये वाला, और ये वैल्यू इसकी हो सकती है। ठीक है, तो हाईएस्ट जो है वो ये है। तो आपको आंसर में लिखना है, मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि जैसे मैं CH2Cl2 लेता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि CH2Cl2 हैज़ अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सच दैट कार्बन क्लोरीन bond dipole moment cancel out each other, while carbon hydrogen dipole moment reinforce each other and thus contribute to net। तो इसकी कुछ डाइपोल मोमेंट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है मेरे हिसाब से गलत है। और लास्ट में हम देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये वाला बाद में मैं सेकंड नंबर लूंगा, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि CCl4 has a perfectly tetrahedral structure where the net dipole moment of 3 CCl bond and the 4th CCl bond all are in opposite direction, so the net dipole moment is 0 here, it is written, ये सही है। अब ये तीसरा जो स्ट्रक्चर है ये वाला, यहाँ पे जो सेकंड दिया है CHCl3, ये मैंने अभी जो ड्रॉ किया ऐसे आप ड्रॉ कर लेना, मैंने समझाते वक्त आपको बताया था। तो इसको आप ऐसे समझा सकते हो कि इन CHCl3 नेट मोमेंट ऑफ 3 CCl bond reinforced द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH बॉन्ड, सभी सपोर्टिव है। देखिए कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंड कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, इन CHCl3 the net moment of 3 carbon chlorine reinforces the dipole moment of carbon hydrogen and therefore has the highest dipole moment। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5, in fifth number question you are asked one hydrocarbon C5H10, ध्यान से पढ़िए, with a chlorine in a dark gives a single monochloro compound C5H9Cl in a bright sunlight। ओके, मैं फिर से पढ़ता हूं, a hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark, ये पहली कंडीशन है, does not react with a chlorine in dark। अब सेकंड कंडीशन देखिए, it gives a single monochloro compound C5H9Cl with a bright sunlight। तो आपको ये बताना है कि C5H10 कौन सा हाइड्रोकार्बन है। जनरल फॉर्मूला हम बोले तो ये CnH2n है। इसमें आप दो कंसीडर कर सकते हो, या तो ये आल्किन है या तो ये साइक्लिक है। ठीक है, अब कंडीशन, अगर ये आल्किन होता तो ये डार्क में रिएक्शन देता, अगर ये 5 कार्बन वाला आल्किन होता तो ये सिंगल मोनोक्लोरो नहीं देता। ठीक है,
मोनोक्लोरो काफी इसके आइसोमर्स, अल्किन का जो 5 कार्बन है उसके आइसोमर्स होते हैं, और आइसोमर्स के हिसाब से हमें मोनोक्लोरो 3, कल भी हमने इंटेक्स में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है कि कितना मोनोक्लोरो आइसोमर्स मिल रहे हैं। तो अल्किन अगर होता है तो ये हमको मोर देन 1 मोनोक्लोरो आइसोमर्स देते हैं, और डार्क में भी ये रिएक्ट करते हैं। तो यहां से ही हमें ये बता दिया है कि अल्किन नहीं है, दिस इज नॉट अल्किन। तो एक बात तय हो जाती है कि C5H10 इज अ साइक्लिक, और 5 कार्बन वाला साइक्लिक है पेन साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन में ये 5 कार्बन और उसके साथ जो सभी हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट, ऑल हाइड्रोजन्स ऑफ दिस कंपाउंड आर इक्विवेलेंट। तो अगर आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और कहीं पे भी हेलोजन रखेंगे तो आइसोमर नहीं मिलेंगे, उसका एक ही नाम मिलेगा, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। तो ये सब जो हाइड्रोजन, ये मैंने स्ट्रक्चर से भी यहाँ पे क्लियर किया है, ये सब हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। कोई भी एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन लग जाता है इन लाइट। तो अब हमें कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, तो आंसर फाइनल आएगा कि जो कंपाउंड दिया है C5H10 वो साइक्लोपेंटेन। समझ में आ गया? चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग मोलेकुलर फॉर्मूला C4H9Br। आंसर आपके सामने है, आप मैच कर लीजिएगा। 4 आइसोमर्स ब्रोमोब्यूटेन के बनते हैं, और एक काम आपको इसमें ये करना है कि सबके नीचे आप IUPAC नाम लिखिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ क्योंकि आंसर आपके सामने है। मैक्सिमम 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है, मैंने भी चेक कर लिया है, ये सही है, 4 आइसोमर्स आ रहे हैं और पूरा सही आंसर है। आप अपने आप बनाइएगा। लास्ट क्वेश्चन जो आप बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आपको ये बोला गया है कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन, इसमें से एंड इसमें से, फ्रॉम दिस 3 मटेरियल। तो सी द फर्स्ट वन, यू आर गिवन 1 ब्यूटेनॉल। तो 1 ब्यूटेनॉल ये है CH3 CH2 CH2 CH2OH। आपको OH निकाल के यहाँ पे डालना है आयोडीन। तो इन द क्वेश्चन और इन आवर टेक्स्ट बुक ये सीधा रिएक्शन हमारी बुक में दिया है। द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, उसमें ये 4 या 5 नंबर का रिएक्शन है, सीधा ये रिएक्शन। ये रेड पीक की प्रेजेंस में विथ आयोडीन हमें मिलता है 1 आयोडो ब्यूटेन। पहचानिए ये रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है। कल ही मैं अगले लेक्चर में ही मैंने बोला था कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है साहब, ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन है। हेलोजन इज सब्सटीट्यूटेड बाय आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कौन सा रिएक्शन है? फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और एक रिएक्शन भी दिया था इसके पीछे, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो सेकंड, फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन you can prepare 1 iodobutane by using Finkelstein रिएक्शन। वो रिएक्शन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे बना सकते हैं। अब आपको आयोडोब्यूटेन बनाना है ब्यूट 1 इन से। यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि HI के साथ रिएक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल हाइड्रोजन अटैच हियर, तो आपकी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ ये होनी चाहिए CH2CHI CH3। मैं मना नहीं करता, ये मेन प्रोडक्ट है आपकी, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, तो आप माइनर प्रोडक्ट भी लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेजर प्रोडक्ट है। अगर ऐसा बोला होता कि 2 आयोडोब्यूटेन तो भी ये रिएक्शन काम आता, लेकिन ये मेन प्रोडक्ट है, तो इसकी जो माइनर प्रोडक्ट आती है, ये मेजर प्रोडक्ट है, इसकी जो माइनर प्रोडक्ट आती है, सॉरी ये माइनर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट मैंने अभी अभी लिखी।
तो माइनर प्रोडक्ट इज अवर आंसर अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड आस्क्ड इन क्वेश्चन 1 आयोडोब्यूटेन। एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे जाएगा, इसके साथ आपको एक प्रोडक्ट और भी मिलेगी, यस CH2CHI एंड CH3। ये माइनर है, आपने पढ़ा है मार्कोनिकोफ रूल में, और ये मेजर है, लेकिन ये हमको पूछा नहीं है, ये हमको पूछा है इसलिए हमने यहाँ माइनर लिख दी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सोचने वाली बात है थोड़ी। हाँ, तो यहाँ पे हमारे सब क्वेश्चंस जो अब तक आप कर सकते थे वो ख़त्म हो रहे हैं, और कहीं पे डाउट है तो आप मुझे पूछिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।